Hello everyone, this is Sonika. Our topic for today is demand and price, which is an economics topic. So let's begin. What is demand? Demand is the quantity demanded of a product, or that can be a good or a service in the market. So that is demand. So is that a proper definition? No. The proper definition requires two simple factors which needs to be covered in for that demand to be complete, right? The one is ability and the other is willingness. So let's say I have the willingness to buy a car, or I have the willingness to buy a watch, right? But I do not have the ability, I just have the desire. Will that be a demand? No, that will not be a demand in in the market. For a demand to be created in the market, these two factors has to be completed. That not only the willingness but also the ability to buy, that will complete a particular demand, right? So no, if you have the desire and you have the money to buy and you're actually finding for that good or for the service, that is the demand. Okay, now how demand works? What is the relationship between demand and price? We will just take two small examples so as to understand the relationship between demand and price. Okay, so first of all we will understand in a very layman language, right? Let's say the price of a particular product, let's say of a coffee, is rupees 10, and the demand. So you must have noticed in day-to-day life, whenever the price is very less of a particular product, the demand of that particular product is more. So let's say it is rupees 40, right? Suppose the prices has been increased. Now you will think that okay, the price has been increased, I might not buy 40 units of that particular product. Since the price has been increased, so what will you do? You will buy only 30 units of that particular product. Now if the price increased to rupees 30, you will buy only 20 units. In the same way, if it has been increased to rupees 40, you will reduce your consumption. Now this is a normal behavior, this is a normal human behavior. Yes, there are certain exceptions to it that we will take into further in this video, but a normal human behavior works like that if the price of a particular product is increased, the demand for that particular product will decrease. In the same way, let's take an example, like if the price of a particular product is decreased, the demand will definitely increase. सो इसके अंदर क्या रिलेशन हुआ कि जैसे जैसे आपके प्राइसेस बढ़े वैसे वैसे आपकी जो डिमांड है वो कम हो गई. नाउ सपोज यू नो दैट देयर दिवाली ऑफर्स, देयर क्रिसमस ऑफर्स एंड न्यू ईयर ऑफर्स, यू मस्ट हैव नोटिस दैट देयर सो मच डिस्काउंट. इन दैट केस प्राइसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, एंड एवरीवन रशेस टू द शॉप्स, राइट? सो डिमांड इज बीइंग इंक्रीज्ड. So what is the conclusion? The conclusion here is that there is an indirect relationship between price and demand. That means एक चीज़ अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है, दूसरी चीज़ अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है. दिस कम्बिनेशन ऑफ अ प्राइस एंड डिमांड इज नॉन एज व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड. इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं. ओके, दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ डिमांड, जो डिमांड कर्व जिसको हम अब आगे देखेंगे. एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज नॉन एज लॉ ऑफ डिमांड. अब सपोज यही टेबल को वी विल टेक into the graph form, in the graphical representation. Let's say this is x-axis and this is y-axis, and you take price over here and demand over here, right? So हमारा प्राइस कैसे जा रहा था? 10, 20, 30 and 40. So in rupees 10 your demand was 40. So यहाँ पर the graph will be like this, right? The graph will be like this: 10, 20, 30, 40. So in 20 rupees you were demanding less quantity, the price was increased, you were demanding less, and the price when increased to 40 you were demanding just 20 units, right? So can we say that the slope of a demand curve is downward? Yes, the slope of the demand curve is what? It is downward. So guys, this is known as law of demand.
You know what is the meaning of law? Law means चाहे कुछ भी हो जाए, this will prevails, right? If there is a gravity thing, so we know that if we will throw an apple, it will come down, right? If we will throw an ball, it will come down. So this is a law that for any sake reason, it will prove right. There will be certain exceptions to it, which is like salt, right? Ab now salt is a basic necessity, like salt is a basic necessity. No matter उसके prices कितने ही क्यों ना बढ़ जाए, you will buy it, right? If you buy rupees 50 rupees का salt, आपका जो टाटा salt आता है, and if in future it increases to rupees 100, let's say after 2 years, you will definitely buy it because it is a basic need, right? So ये आपकी क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी एक्सेप्शंस होती हैं, यानी कि आपका यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा, इसको लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ द डिमांड. सो ये तो हो गया डिमांड एंड प्राइस का एक रिलेशनशिप, राइट? नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. The relationship of demand and supply. See, this is a very beautiful relationship where all the markets of the world works, be it the micro market, be it a national market, the international market, how the money works, the demand and supply of money, the demand and supply of the various currencies, सब इसी चीज़ पर depend करता है. And if you get this point, you will be able to understand the macroeconomic concepts like inflation, like monetary policy, how fiscal policy works, why RBI sometimes sucks money, why RBI influxes money into the market. So why? Because they have to maintain a balance between the demand and supply. I will be more clear when I take further details of this subject. See, now demand. What is demand? We have just seen. I will take two small examples and the topic will be complete clear, and it will be crystal clear to you for the demand and supply. Let's see that आप एक मार्केट में जाते हैं and वहाँ पे क्या होता है, एक सेलर होता है, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है, एक सेलर होता है एंड ही इज़ जस्ट हैविंग वन प्रोडक्ट. लेट्स से वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है एंड वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा एंटीक है और उसको वो कहीं से लेट्स से कोई पुरानी हवेली से मिल जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल, एंड यू फाइंड इट, यू आर वेरी क्यूरियस टू बाय इट, एंड देयर आर 3 कंज्यूमर्स टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Right, there are 3 consumers to that particular product. Now that antique price, let's say he has fixed it rupees 10,000. Okay, he says that I will be selling it for rupees 10,000, and then these 3 consumers come. Now they want, they think that this product is precious and for them, and they can sell it in the coming 10 years, they can auction it or for whatever reasons. Let's not go into that. So he says that okay, I am going to give you 12,000 rupees, okay, give it to me. Okay, the second consumer say that I'll give you 15,000 rupees, give that product to me, and the third one says that okay, I am going to buy it in double rate in 20,000 rupees, give it to me. Okay, now आप यहाँ पे देख रहे हैं this seller, okay, this seller which he is selling that one product is known as supply, right? Can we say that in simple terms कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम supply कहेंगे, क्योंकि ये एक मार्केट है जहाँ पर दो sellers and consumers they are meeting, ठीक है? तो उस चीज़ में ये एक सप्लाई है और ये जो consumers है means this is the quantity demanded, that one product is the quantity which is being demanded by the different consumers at different prices. तो आप इस ह्यूमन नेचर, इस नॉर्मल बिहेवियर को जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, कम है, ठीक है? यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि जो सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट है वो कम है एंड डिमांड इज मोर, राइट? क्योंकि 3 कंज्यूमर्स हैं एक प्रोडक्ट पे, राइट? तो आप क्या देख रहे हो कि प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज मोर देन द सप्लाई, और उसके प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं. तो हम यहाँ से हमें ये एक कंक्लूजन मिलता है कि जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई द प्राइस गेट्स इंक्रीज्ड. Okay, in the same way, if there are, let's say seller has 3 products, okay, let's say product A, A1, A2, ठीक है, and they are all identical products, but there is only one consumer, ठीक है, एक ही consumer है उस product का, and let's say that product is of rupees 500. Now this consumer knows that कि इस बंदे के पास कोई और consumers है ही नहीं. आप खुद अपना एक human nature देखो, जब आप किसी शॉप पे जाते हैं then you try to buy something and उसके वहाँ पे कोई consumers नहीं दिखेंगे, you will bargain it more thinking that इसके पास तो consumers नहीं है, let's bargain in little more. So in that way ये consumer क्या करता है, buy करने लग जाता है, and उसके पास बहुत सारे products है sellers के,
तो उस केस के अंदर ये कंज्यूमर बोलता है कि मैं आपको सिर्फ ₹400 दूंगा, ठीक है। वो कहते हैं अगर आप मुझे दे रहे हो देन आई एम गोइंग टू बाय इट ₹400, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ₹500. सो दिस सेलर्स गेट्स एग्री, राइट, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग एनी कंज्यूमर्स, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड ही नहीं है. और आई कैन से दैट डिमांड तो है बट सप्लाई ज़्यादा है, राइट. सो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड केस हो गया कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड. सो इन दिस सिनेरियो द प्राइस गेट्स डिक्रीज्ड. प्राइस जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, right. So I think I am very clear about these two concepts कि when demand is greater than supply, price will increase, and when supply is greater than demand, price will decrease. I will give you certain recent examples, in 20 seconds. The first example, you will see that the price of lemons, which was recently 250 rupees per kg, that was because of it more demand and less supply in the market. And in the second scenario, you must have seen that farmers, in the news, that farmers, they're throwing their crops like tomatoes, ठीक है, वो अपनी क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, पूरा फेंक रहे हैं. क्यों? बिकॉज उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि प्राइसेस आर सो लेस, लाइक ₹2 kg, ₹5 kg, दैट दे थिंक दैट इट्स बेटर टू थ्रो देम, राइट. लेकिन अब क्या होता है ना, ये एक थोड़ा सा इफ़ वी गो अ लिटिल फर्दर, यू विल सी दैट हाउ मार्केट में एक प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, दैट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. जहाँ पर डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाती है उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और उसी प्राइस पर आपकी जो प्राइस है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज अ मोर डिटेलिंग कंसेप्ट विच वी हैव टू डू इट फर्दर. लेट्स कम अहेड टू द बेसिक डेफिनेशंस. सो व्हाट इज डिमांड? The quantity demanded of any good, ठीक है, that buyers are willing and able to purchase, right. Not only the willingness is enough, but you should have the ability to purchase it. It is the number of goods that the consumers are ready to able to buy at several prices, as we have seen from that table, at several prices during the given time frame, because वो different prices पे उसकी जो demand है वो क्या होती है, change होती रहती है. Law of demand I have already told you कि how it will work, ठीक है, किस तरीके से डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप का एक टेबल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. एंड यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, एंड द ग्राफ विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, विच इज नॉन एज डिमांड कर्व, राइट. दिस इज हाउ द ग्राफ विच वी हैव मेक दैट व्हेन द प्राइस इंक्रीज, हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट थिंग विल डिक्रीज. नेक्स्ट कम टू द मार्केट डिमांड. तो मार्केट डिमांड कुछ नहीं होती. जब आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिमांड ले रहे हो तो एक मार्केट डिमांड क्या होगी, सभी लोगों की इंडिविजुअल्स की डिमांड को आप ऐड कर दो, वो आपकी मार्केट डिमांड हो जाएगी. तो सम of all the individual demands for a particular good or service to find the quantity demanded at any price. तो इस लाइन का क्या मतलब है, to find the quantity demanded at any price means, जो हम भी अभी मैंने आपको समझाया था कि एक ऐसा ये एक प्रोसीजर होता है जहाँ पर हमने जो अभी 2 एग्जांपल्स देखे थे, वो वहाँ पर डिमांड कहीं पे ज़्यादा थी, कहीं पर सप्लाई ज़्यादा थी. तो मार्केट में एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, एक ऐसी सिचुएशन आती है, एंड लेट मी टेल यू दैट सिचुएशन इज बाय द मार्केट फोर्सेस, जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है. तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जहां डिमांड एंड सप्लाई हो जाती है इक्वल, वहां पे प्राइस ऑटोमेटिकली, एक प्राइस क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है, विच वी से एट एज ए इक्विलिब्रियम प्राइस. तो इस लाइन का ये मतलब है टू फाइंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट एनी प्राइस, राइट. सो मार्केट डिमांड इज द सम टोटल, राइट. तो शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट की डिमांड करोगे वैसे वैसे आपके जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन दिस विद अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सी ये देखो, अब यहाँ पे अगर आप शिफ्ट इन डिमांड कर्व देखोगे तो क्या है कि प्राइस क्या है, सेम है, ठीक है. लेट्स से ₹100 प्राइस क्या है, सेम है, ठीक है. उसी प्राइस के अंदर यहाँ पर लेट्स से कि 10 क्वांटिटीज़ जो है वो डिमांड होती थी, राइट. अब क्या हुआ, प्राइस सेम होने पर भी किसी ने बोला कि यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो क्या हुआ कि 20 क्वांटिटीज़ लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया, एंड देन 30 एंड फर्दर. सो यू विल सी दैट पहले आपका डिमांड कर्व ऐसे बन रहा था, अब जो है इसकी ये यहाँ पर ऐसे बन रहा है और फिर ऐसे बन रहा है. तो मतलब कि जब आपकी डिमांड बढ़ रही है तो आपका जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा,
राइटवर्ड. दिस इज नॉन एज अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, कि किस तरीके से आपका कर्व राइटवर्ड शिफ्ट है. इसी तरीके से अगर सपोज प्राइस आपका 100 ही है बट योर डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, राइट. लेट्स से कि वो पहले 30 यूनिट्स थी, फिर 20 हो गई, फिर 10 हो गई, राइट. लेट्स से दिस इज हाउ इट विल द एक्चुअल डिमांड इज देयर. एंड वो फिर आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इसी प्राइस पर, वो यहाँ पर पहले यहाँ पर थी, वो यहाँ पर आ गई, एंड देन फिर से वो यहाँ पर आ गई, मीन्स लेस हो गई. तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि डिमांड कम होने पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मीन्स आपका पूरा का पूरा कर्व क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया. So, what is the conclusion? Conclusion is the rightward shift means increase in demand, the leftward shift is the decrease in demand. Okay. So, what are the factors which is affecting the demand? क्या क्या factors है, right? अब हमें पता है, एक बात मैं बताना भूल गई, really sorry for that. Law of demand जो होता है उसमें हम एक assumption लेके चलते हैं, and that assumption is that all factors are constant. ऑल फैक्टर जो अब हम अभी पढ़ने वाले हैं उन्हीं को हम ऑल फैक्टर्स बोलते हैं, कि हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड का रिलेशनशिप प्राइस के साथ देखेंगे, ठीक है. जितने भी सारे अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई कैलमिटीज़ है या इनकम है या द टाइप ऑफ गुड्स हैं, हम वो सारे फैक्टर्स को क्या मानेंगे, स्टैटिक, कि वो उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है. अब क्या होता है फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द डिमांड. तो इसको हम बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से समझेंगे कि इनकम. आप खुद सोचो, आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या आपकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी. ऑब्वियसली आपकी डिमांड उस चीज़ की इंक्रीज होगी. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको डिमांड मीन्स इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, मे बी समथिंग विच यू लाइक, मे बी योर नेसेसिटी थिंग, और जिसको आप थोड़ा और बढ़ा देंगे. सो व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ दैट थिंग और मे बी अनदर थिंग्स इट एड्स. Okay, but now it is different for different types of goods. Okay, it is different for the different type of goods. Normal goods में तो आपका यही होगा कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी. क्या inferior goods में भी ऐसा होगा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए that what is the inferior good. Okay, inferior good एक certain normal example जो सब देते हैं that is coarse grains. ठीक है, coarse grains is basically those grains जो थोड़े से कोर्स होते हैं नॉर्मल ग्रेन से और थोड़े सस्ते मिलते हैं, ठीक है, दे आर चीप. अब क्या होता है, लोग सपोज वो अफोर्ड नहीं कर पाते एंड क्योंकि उनका इनकम लेस है तो दे विल टेंड टू बाय कोर्स ग्रेन्स. लेकिन उनका इनकम, ठीक है, अगर उनकी इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आप खुद सोचो दे विल शिफ्ट टू बेटर ग्रेन्स. तो क्या होगा, वो बेटर ग्रेन्स बाय करना स्टार्ट करेंगे एंड दे विल नॉट बाय द कोर्स ग्रेन्स. तो उनकी बेटर ग्रेन्स की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से कोर्स ग्रेन्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यानी कि जब मेरा इनकम वाला नॉर्मल कंसेप्ट था तो मैं ये बोल रही थी कि यार इनकम बढ़ गई है, ठीक है, सो मेरे नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी. बट इन द इन्फीरियर गुड्स सिनेरियो, इन द इन्फीरियर गुड सिनेरियो मेरी ये चीज़ जो है वो क्या होगी, इनकम बढ़ने पर इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है, फिर आता है आपका गिफिन गुड्स. गिफिन गुड्स सेम तरीके के गुड्स होते हैं, ठीक है. दीज आर ऑल्सो सच टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स कि जिस चीज़ में जब उस चीज़ के प्राइस, व्हेन द प्राइसेस गो अप वाइल डिमांड गोज डाउन, व्हेन प्राइसेस गो डाउन, राइट. देखो हम इसमें भी हम क्या होता है कि नॉर्मली आपका जो लॉ ऑफ डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट. जिसमें हमारा ये होता है कि आपकी जो प्राइस है वो, अगर सपोज आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. बट गिफिन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसके लिए लॉ ऑफ डिमांड नहीं प्रिवेल करता, और आई वुड से दैट दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. क्योंकि आप खुद सोचो, गिफिन गुड्स आर दोज इन्फीरियर गुड्स, अगर उसके प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और अगर उसके प्राइसेस घटेंगे तो उसकी जो डिमांड है वो घट जाएगी. लेट्स से कि कोर्स ग्रेन्स का ये एग्जांपल अगर हम लगाएं तो उसके प्राइसेस और भी कम हो गए, तो आप सोचोगे कि यार एक तो कोर्स ग्रेन्स, ऊपर से उसके प्राइसेस और भी कम हो गए, इट मीन्स इट इज़ एन वेरी इन्फीरियर प्रोडक्ट, इट माइट नॉट बी गुड फॉर हेल्थ, और उसका क्वालिटी शायद इतना अच्छा नहीं होगा, तो आप उसका कंजप्शन या फिर आप उसकी डिमांड कम करना स्टार्ट कर देते हैं. दैट मीन्स डिफाई मतलब इट इज़ नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड इकोनॉमिक्स, right. That means there is a direct relationship between price and demand in case of given goods, right.
एंड दीज आर लो इनकम और नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, आप कुछ भी सपोज एक लेट्स से आप कुछ भी बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदते हैं, बट उसका प्राइस और भी कम होने पर आप उसकी डिमांड कम करना स्टार्ट कर देते हैं. इसका बिल्कुल उल्टा होता है वेबलिन गुड्स. जैसे गिफिन गुड्स बहुत ही नॉन लग्जरियस गुड्स होते थे, उसी तरीके से वेबलिन गुड्स क्या होते हैं, जो कि लग्जरियस गुड्स होते हैं. You must have seen that your parents are investing in gold, your parents are investing in lands or properties. Why? Because they know that in future no matter what उनका price increase होना ही होना है, no matter what at what pace, but it will happen. तो these are luxurious goods and आप देखोगे कि उसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी उसकी डिमांड कम नहीं होती. It is always high in demand. Why is that so? Because because people have the tendency to buy things जिसके prices increase होंगे and they think that it's better to save in the form of gold or in the form of lands and property so that उसका एक appreciation हो. तो क्या यहाँ पर law of demand curve follow कर रहा है? Absolutely not. You see there is a direct relationship between price and demand of the goods like gold, lands. इसको हम क्या बोलते हैं? Luxurious goods. And in economic terms we see it as Veblen goods. So Veblen goods show similar behavior, right? The premium luxury goods like gold, wines, cars, since these are status symbols, so high-end buyers will see more value in buying them even if they are costlier. So even if the prices will increase, suppose there is a marriage, अगर gold के prices increase हो रहे हैं, so they will buy, right? अब this is the last concept, that is very important, right? Often we see static questions, the basic questions out of it. One is the substitute goods and the other is the complementary goods, right? तो substitute goods और complementary goods क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे हम examples लेंगे. As the name suggest tea and coffee. ठीक है, as the name suggests कि सब्सटीट्यूट यानी कि आप किसी भी चीज़ को जब किसी से सब्सटीट्यूट करते हैं, सो यहाँ पर क्या है? गुड्स है. लेट्स से आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ बेवरेजेस, मुझे टी कॉफ़ी में से मुझे कुछ एक भी चीज़ मिल जाएगी, आई एम हैप्पी. ठीक है, अब क्या हुआ मार्केट में, मैं पहले कॉफ़ी पीती थी, राइट? तो उसका प्राइस क्या था? ₹300. ठीक है, उसकी प्राइस 300 थी, बट व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मे बी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, मे बी बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस लाइक वॉर्स और पैंडमिक, क्या हुआ? उसका प्राइस जो है वो 400 हो गया. अब मैं सोचूंगी यार कॉफ़ी का प्राइस तो बहुत ज़्यादा हो गया और टी जिसका प्राइस 200 था, तो आई विल शिफ्ट माई कंजप्शन थिंग टू टी. मैं सोचूंगी कि यार मुझे टी ही पी लेना चाहिए बिकॉज मुझे तो बेवरेज चाहिए एंड आई एम हैप्पी विद टी एज वेल. देख रहे हो कनेक्शन? देख रहे हो आप? इट मीन्स दैट दीज गुड्स, राइट? प्राइस तो इंक्रीज हुआ है कॉफ़ी का, प्राइस तो इंक्रीज हुआ है कॉफ़ी का, सॉरी हाँ इंक्रीज हुआ है, प्राइस तो इंक्रीज हुआ है कॉफ़ी का एंड डिमांड किसकी बढ़ गई है? टी की. सो पीपल आर टेंडिंग टू शिफ्ट देयर डिमांड ऑफ दीज गुड्स. So this is known as substitute goods. When in definition terms, I will explain it. When price of one product increases and the demand of another product increases, is known as substitute goods. अब इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ बढ़ेगी. ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम लेंगे. जैसे मान लो इसका प्राइस कम हो गया है, ठीक है, और इसका प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गया है कि ₹300 है यहाँ पर. ठीक है, अब क्या हुआ कि अब इसका प्राइस कम हो रहा है और अगर मैं सपोज टी कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, ये अनदर एग्जांपल है, रिवर्स एग्जांपल है कि अब मैं टी कंज्यूम कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि यार टी का प्राइस तो 200 से 300 हो गया, जबकि कॉफ़ी का प्राइस 200 रुपये, तो मैं कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाऊँगी. सो दिस इज़ हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स वर्क. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर you can say are exactly opposite of substitute goods. Why? Because they complement each other, like the couple complement each other. In the same way these goods complement each other. उनका एक दूसरे के बिना क्या होता है? चलता नहीं है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? दो एग्जाम्पल एक लेते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल. ठीक है, अब you must have seen in middle class families, people are like they are likely to say कि भाई कार तो खरीद लेगा, ठीक है, बट पेट्रोल के दाम देखे तुमने? तो in the same way कि जब कोई बंदा anyone if they try to buy a product, a luxury car or maybe a simple car, they also have to take the prices of petrol into considerations.
That person will not buy a car if he is not able to afford the petrol for it, राइट. सो उसमें क्या होगा कि इफ़ आई से कि सपोज पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या होगा ना तो क्या होगा ना कि प्राइसेस ऑफ कार माइट, इफ नॉट मच, इट विल डिक्रीज. इन द सेम वे सपोज पेट्रोल सस्ता हो गया है, ठीक है, बहुत सस्ता हो गया है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स मिल गए पेट्रोल के इंडिया में, चलो ठीक है जी, और सस्ता हो गया वो, ठीक है, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. तो क्या होगा ना कि पीपल विल एक्चुअली बाय मोर कार. इट मीन्स द डिमांड ऑफ कार्स विल बी मोर. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने पर दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है. और लेट्स टेक ओनली वन thing so to get it in a better way कि if the prices of petrol is getting increased, the demand of cars is decreased. It means there is an indirect relationship between complementary goods, right? So these were the substitute goods. I hope that I am very much clear about these goods. Then exceptions to the law of demand we have done, right? Giffen goods, राइट. नेचुरल कैलेमिटीज़ का एग्जाम्पल तो आपने सीधा साधा आप देख ही लिया है, बिकॉज ऑफ वॉर और बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक. क्या होगा ना, यू मस्ट हैव सीन इन द न्यूज़ जब ड्यूरिंग कोरोना पीपल वर स्टार्टिंग पाइलिंग अप सर्टेन प्रोडक्ट्स. वो क्या करते थे, मार्केट स्टोर्स और सुपर स्टोर्स में जाते थे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, एंड दे थिंक दैट बहुत ही सीरियस सिचुएशन आएगा, दे थॉट दैट, एंड दे स्टार्टेड पाइलिंग अप. इट मीन्स अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन या वॉर लाइक सिचुएशन आने वाली है, तो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट पाइलिंग अप दोज कॉमोडिटीज. इट मीन्स दैट आपकी जो डिमांड है प्रेजेंट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, नाउ पीपल टेंड टू बाय दोज प्रोडक्ट्स मोर, कि भाई मुझे तो वो चीज़ खरीदनी ही है. लाइक आई कैन से आईफोन इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू गिव इट कि उसके जो फीचर्स हैं या जो भी है, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, एंड विद दैट आईफोन 12 एंड 13 दैट इज़ अ फैशन ट्रेंड. इवन इफ द प्राइस इंक्रीज पीपल विल बाय द न्यू मॉडल्स, राइट. एंटिसिपेशन ऑफ द प्राइस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट. देखो इसको हम एक हाउसवाइफ की तरह समझेंगे, ठीक है. नॉर्मल हाउसवाइफ कैसी होती है कि या हम भी अब हम भी एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर आपको लगता है, ठीक है, लेट्स टेक प्राइस एंड लेट्स टेक डिमांड. सो अगर हमको लगता है फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइस इंक्रीज होंगे, आप क्या करोगे, आज ही उसको खरीद लोगे, तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना. कि आप ये सोचोगे कि यार ये चीज़ महंगी होने वाली है, चलो आज ही इसको बाय कर लेते हैं. इन प्रेजेंट इट्स डिमांड विल इंक्रीज. लेकिन अगर आपको कहीं से पता लगता है कि यार कुछ ना कुछ यहाँ पे सेल लगने वाली है एंड इसका फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, कम होने वाला है, सो व्हाट विल यू डू, उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि you will tend to shift demand in the future. You will think that I will buy that particular thing in the future. गोल्ड में भी ऐसा होता है. आपके पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर आपको लगता है कि उसका जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, आज ही उसको बाय कर लेते हैं और फ्यूचर में उसको बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज सस्ता है तो आगे प्राइस क्या पता बढ़ जाए, तो मैं आज ही खरीद लेती हूँ. तो क्या ये एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड? कैसे पता करेंगे? येस, बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट. तो अगर आपको कोई बोले कि दिस in this scenario is an exception to the law of demand, yes, because there is a direct relationship between price and demand. And yes, these are taste and preferences is also one of the factors, right. जो चीज़ आपको पसंद है आप वो खरीदोगे फिर चाहे वो 10-20 रुपये महंगी क्यों ना हो जाए, राइट. यानी कि प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड क्या है, उसकी बढ़ेगी ही, मतलब ये भी एक एक्सेप्शन है. एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको एंटिसिपेशन ऑफ प्राइसेस में भी बता दिया है. अच्छा, एक्सपेक्टेशन इज़ लाइक इनकम. अगर आपको लगता है कि आज इन फ्यूचर आपकी इनकम बढ़ने वाली है, ठीक है, फॉर द नॉर्मल पर्सन उसको लगेगा कि मुझे प्रमोशन मिलेगा एंड मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो आप आज थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करोगे. सो नंबर ऑफ बायर्स, किसी भी प्रोडक्ट के जब नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होता है ना कि उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है. सिंपल है ये तो बहुत ज़्यादा कि if number of buyers for a particular product increases, so the demand of that particular product will increase. So this was the relationship between taste and preferences with demand, expectations in income and demand, number of buyers and demand. So thank you so much for watching this. Thank you for your patience. Thank you.